See, please understand one thing, surrender is something which is the only thing we expected from us. एक ही चीज हमसे भगवान अपेक्षा रखते हैं कि भाई वो हम अपने आप को समर्पण करें, एंड हम लोग सब कुछ करेंगे, समर्पण नहीं करेंगे। क्यों? समर्पण कर दिया तो हमारा जो करने का जो कारण कार्य करने का जो प्लानिंग होता है, वॉट एवर एक्टिविटीज वी आर प्लान टू, वो नहीं कर पाएंगे ना। हम हमारी मन की करना चाहते हैं, और हमेशा शास्त्र कहता है मन की करता कौन करता है, मन की मंकी करता है। हु डज मन की मंकी। सो जो भी अगर मन का करना चाहते हो तो समझ लेना आप लोग मंकी हो। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली that we are not ready to surrender because of only one thing, we want to do our own activities। हम लोग क्या कहते हैं मंदिर में जाके, क्या बोलते हैं? सब तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण। भगवान बोलते हाँ ठीक है, तेरा तुझको अर्पण। कोई घर पे साधु संत आ जाए तो भी वही बोलते हैं ना, सब कुछ आपका है महाराज। आप बोलने वाला भी जानता है ये झूठ बोल रहा है, जो महाराज भी जानते हैं ये झूठ बोल रहा है। बोल दे अगर कोई महाराज बोल दे अच्छा मेरा है, चलो घर के बाहर निकलो, क्या हाल हो जाए। इफ दैट सेंटली पर्सन से अच्छा मेरा है ना, तो रखो जाओ आप लोग बाहर, तो व्हाट वुड बी द सिचुएशन? आप लोगों का क्या सिचुएशन होगा? तो इट्स ऑल लिप टॉक। सो लेट्स नॉट डू लिप टॉक, लेट्स डू समथिंग फाइनाइट, कुछ ढंग से करें। ये सब बस मतलब ऊपरा ऊपरी बात करने में कोई मजा नहीं है ज्यादा। तेरा तुझको अर्पण, और एक्चुअली मन में क्या होता है? मेरा मुझको दे दे, सब कुछ मेरा है, मेरा मुझको दे दे, मेरा तो दे ही दे, पड़ोसी का भी मुझको दे दे। दैट्स हाउ वी ऑल थिंक कि भाई मेरा तो दे, पड़ोसी का भी दे, उसका भी दे, इसका भी दे। सबका लेने के बाद भी हम लोग खुश नहीं है। और क्यों खुश नहीं है? Why we are not happy? Because we have a demonic thinking. Tell me honestly, how many of you all? Okay, who would like to volunteer first? Acha, Nikhar wants to volunteer. Fine. So Nika, tell me one thing, Nikhar Mataji, that are you envious of Ambani or Not Adani? exactly. Not exactly, right? But you stay in a separate house or stay in a building? I mean, apartment. No, a separate house. Separate house. ठीक है. Suppose separate house में रह रहे हो, and your neighbor gets a better car than yours, then what will be your feeling? Not much. I've told you I'm not a material girl. Not ठीक है, but generally क्या होता है? Yeah, पड़ोसी का generally, yeah. पड़ोसी का देख के थोड़ा बहुत तो जलन आता है ना। जी. बट वही अंबानी को देख के जलन नहीं आता है, क्यों? Am I making sense? Yes. Why? Ambani is having 10 times better car than yours, or any big shot you may take is having 10 times better. The thing is, वो अपने हाथ से परे है, so इसके लिए we don't have any jealousy towards Hmm. such a person। हम लोग क्या होता है, ठीक है 10 जन्म लूंगा तो भी उतना नहीं आएगा, छोड़ना, टेंशन क्यों लेते हैं। तो हमारा सोच विचार कहाँ से स्टार्ट होता है? Where does our thinking process start? It starts from a simple comparison। Suppose I am having a 15 lakh car and my neighbor is having a 25 lakh car, simple। You're not worried about the Lamborghini or the 5 crore car and all that. You're just worried about, I have got a 15 lakh car and my neighbor is having a 25 lakh car. So target one, your neighbor, your friend, your relative, whatever it is. That is your first target. How will I overtake him? How will I overtake him? And उसको overtake करने के बाद, let's say in another 5 years, you manage to get a 25 lakh car. Now he is no longer a character for envy for you. Then you look out for someone who is having a 50 lakh car. Still your target is not Ambani. You're not envious about him. I don't, let him be happy in his place. Let me target a
25 लाख कार, 25 लाख की गाड़ी है मेरे पास, चलो किसी और व्यक्ति के पास 50 लाख की गाड़ी है, उसको मैं टारगेट करूं. And then you start working, running, and then finally you get that 50 lakh car. Then once you got that, then your next target is 1 lakh, 1 crore वाली गाड़ी. उस बंदे के पीछे भागना है. I'm just giving a very just off the hand example. So what does this happen? Least do you understand that your lifespan is getting over and just trying to catch your nearest person who is ahead of you. Even if someone is working in a company, he is not worried about the CEO of the company. He is worried about his next boss. उसका दुश्मन यही होता है, next boss. He is not bothered about the CEO of the company. वो तो अपने हाथ के परे है, क्यों सोचना है उसके बारे में. So that is how a demonic mentality is. And that is why a demon is never happy. Why you're not getting happiness? Lifelong you are running in a comparative race. And happiness का मूल मंत्र क्या है? One has to be satisfied. If one is satisfied, he is happy. But the problem is, a person is not never satisfied. He is always running behind something better. And okay, now I would like to ask one thing. साधु को कैसे होना चाहिए? Satisfied होना चाहिए, बराबर? Is everyone with me? How does a sadhu should be satisfied? But what will happen if a Kshatriya becomes satisfied? Chaos. Chaos. Satisfied का simple understanding. चलो एक साधु को 4 रोटी मिला, he is happy. उसको 2 रोटी मिला, ठीक. But a Kshatriya who's guarding the country and चलो त्वांग में जो चाइनीज ने इंकर्शन किया, बस 1 किलोमीटर जमीन ले लिया, ठीक है, आई एम सेटिस्फाइड विथ माई लैंड. यू टेक 1 किलोमीटर लैंड, फिर वहां से पाकिस्तान ले लाया थोड़ा और, मैं हम लोग इंक्रोच करते हैं, तो व्हाट विल हैपन? पूरी दुनिया, पूरा कंट्री दुश्मन ले लेगी. Whereas how should be a क्षत्रिय? जितना भी है वो कम है उसके लिए, we should fight for more. So what quality may be applicable to one varna may not be applicable to the next varna. For example, if there is a dancer, उसके लिए सबसे बड़ा क्वालिटी क्या होना चाहिए? एक नर्तकी है तो उसके लिए सबसे बड़ा क्वालिटी क्या होना चाहिए? लज्जा, या लज्जा छोड़ के नाचना पड़ेगा? लज्जा छोड़ के ही नाचना पड़ेगा ना. देन ओनली शी कैन परफॉर्म, राइट? अगर वही घर की बहू हुई तो उसके लिए लज्जा जरूरी है. सो प्लीज अंडरस्टैंड, every quality has its own way of interpretation. That is how demons, that is why demons don't know what is to be done and what is not to be done. वो आके तर्क में झगड़ा करेंगे. प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च. लास्ट टाइम आई एक्सप्लेन ना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उनको पता नहीं. अरे भाई संतोषित रहना चाहिए. अरे संतोषित किसको रहना चाहिए? ब्राह्मण को रहना चाहिए, क्षत्रिय को नहीं रहना चाहिए. क्षत्रिय को और कितना भी हो कम है, इसलिए क्षत्रिय क्या क्या 5-5 शादियां करते. क्षत्रिय they can do 5-10 marriages they can do, whereas how many marriages a brahmana can do? Not more than one. Even there also he has to be satisfied. whoever life partner he has got, he has to be satisfied. तो कहने का मेरा भावार्थ क्या है कि भाई every quality may be for one may be applicable, may not be applicable to the next person. Similarly, this is how demons are. So let's go to the second half of the same verse. Prabhuji, can you repeat the verse number, Prabhuji, please, for everyone? 1 minute. I will have to go. It is 16.7. 16 chapter, 16 chapter, 16.7. 16.7, right? 16.7. Yeah, Bhagavad Gita 16.7. Yeah.
न शौच्यम अपि न आचरो. न शौच्यम. What is this? Shauchyam means, Shauchyam means cleanliness. And न आचरो. आचरण मतलब, आचरण किसको कहते हैं? एक व्यक्ति का बिहेवियर, स्वभाव को आचरण कहते हैं. हाउ डज वन बिहेव? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आजकल जितने लोग बिना नहाए अच्छे परफ्यूम लगा के घूम रहे हैं, प्लीज समझ जाइए आप लोग अच्छे राक्षस हो, डेमन्स हो, एज पर शास्त्र. शौचम नहीं है, क्लेनलीनेस ही नहीं है, नहाते नहीं है, कारण कुछ भी हो. कहते हैं प्रभु जी बहुत ठंडी है, कल ही तो नहाया, 2-3 दिन पहले तो नहाया. दिस इज इन कलयुग. दिस एवरीथिंग हैपेंस. कलयुग में हर चीज जो was good earlier has become bad now. पहले नहीं नहाते तो क्या हो गया भाई, बीमार है क्या? आजकल नहीं नहाया ना, अच्छा ठीक है, कल ही नहाया था, ठीक, वेरी गुड. जल्दी उठ गए, अरे क्या हो गया, जल्दी उठ गया भाई. पहले जमाने में, कलयुग में, पहले जमाने में क्या होता था, लेट उठा, अरे कुछ गड़बड़ है. जल्दी उठा मतलब नॉर्मल है. आजकल जल्दी उठा तो अब नॉर्मल है, एंड लेट उठा तो सही है. दिस इज कलयुग. So that all these type of confusion is, they don't know what is to be done, they don't know what is not to be done. So all these people who want to bypass and set up their own rules, they are demons. Please understand this. Sauchyam, cleanliness. What is the first part of cleanliness? Is it applying only to bodily cleanliness? मैं कई सारे राक्षस बता सकता हूँ या असुर बता सकता हूँ जो रोज दिन में 3 बार नहाते हैं, बट फिर भी उनके अंदर शौच्यता नहीं है. Sauchyam doesn't refer only to physical cleanliness. It refers to mental cleanliness also, or internal cleanliness. I'm not talking of the digestive system cleanliness, okay? I'm talking of the cleanliness with respect to the heart and mind. मन, आपका मन कितना साफ कर सकते हो. और ठीक है, बॉडी वॉश, फेस वॉश, हैंड वॉश, वो सब तो अवेलेबल है. मन के लिए कौन सा वॉश अवेलेबल है? मन वॉश तो अवेलेबल नहीं है, तो कैसे वॉश करेंगे? दैट इज द सीक्रेट ऑफ व्हाई वन शुड चैंट. भगवान का नाम क्यों लेना चाहिए? द मेन पर्पस ऑफ टेकिंग द होली नेम इज वन chants so that there is cleanliness, cleansing of his mind. Many times I see people, just taking the chanting bag and like a style they do it. No, let's understand the concept behind it. Good, you're doing it. See, chanting, whether knowingly, जानबूझ के करो या अज्ञानता में करो, दोनों सूरतों में भगवान का नाम जपना हमेशा फायदेमंद ही है, कभी भी नुकसानदायक नहीं है. मगर याद रखना, one who wants to clean his mind and heart will chant the holy name. भगवान का नाम जपेगा जिससे मन और आपका हृदय साफ होगा. और मन में क्या मैल है? कुछ मैल है आपके मन में? क्या क्या मैल बैठे के मन में? Jealousy, Hmm. gossiping. Gossiping, okay. लालच. लालच, वेरी गुड. Lust. काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, सब होलसेल में है. डोंट वरी, रिटेल में नहीं, होलसेल में है, भर भर के है. मन में क्या है? काम, क्रोध, लोभ. काम doesn't refer only to lust for the opposite sex. It also refers to lust for material things, lust for better lifestyle. So many things are there for lust. एक चीज नहीं है लस्ट के लिए, अनलिमिटेड चीज. Lust means what? Desire in a condensed form is called as lust. इच्छा, जो एकदम वैसे दूध को गर्म करते 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 गाढ़ा हो जाता है, रबड़ी बन जाता है ना,
वही दूध जब आप गर्म करके आप उसको हिलाते रहो, गर्म करते रहो, हिलाते रहो, तो क्या होता है, रबड़ी बन जाता है या मावा बन जाता है, जो भी बोलो उसको। उसी तरह आप जो करते हो, जो कार्य करते हो, चाहे आप रबड़ी बनाओ, मतलब जो भी इच्छा का चीज वस्तु जो है उसके बारे में आप सोचते रहोगे, तो वही गाढ़ा होते 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 उसी चीज का गाढ़ापन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ बॉय इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट अ गर्ल, एक लड़का एक लड़की के बारे में सोच रहा है, सोच रहा है, सोच रहा है, सोचते सोचते इतना पागल हो जाता है कि उसको वो लड़की किसी भी हालत में चाहिए, और नहीं मिले तो उस पर एसिड डाल देगा, उसको मार देगा, कुछ भी करेगा। These are all vikar of lust. These are all, what do you say? They are side reactions of over desire and over lust. तो आप समझ लेना प्लीज कि this is how we all कहीं ना कहीं हम लोग जाके इस ट्रैप में फंसते हैं. We get stuck in this trap. And ये सब अगर साफ करना है, ये निकालना है, काम, क्रोध, anger. Calm and क्रोध goes hand in hand. When काम पूरा होता है, let's say someone desires for iPhone, latest iPhone, मिल गया, तो क्या होता है, काम पूरी हो गई, और उसका फायदा, व्हाट इज द एंड रिएक्शन ऑफ दैट, दूसरा काम होता है, चलो आप iPhone 14 आ गया, लेट मी गो फॉर iPhone 15, लेट मी गो फॉर iPhone 16. So every time that desire keeps on increasing, तो एक one lust will lead to another lust, एक इच्छा दूसरी इच्छा को लेके जाएगा, और अगर पूरी नहीं हुई तो, suppose your lust for iPhone 14 or 13, whatever it is, doesn't get fulfilled, what will happen, you will get anger, क्रोध आएगा आपके अंदर, आपके अंदर क्रोध आएगा. उसके पास है, पुरानी का डायलॉग है ना, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, वो तो जेलसी है ना, इट्स अ टाइप ऑफ जेलसी, राइट. सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट कहीं ना कहीं काम एंड क्रोध गो हैंड इन हैंड. काम फुलफिल हुआ तो और काम आएगा, और अगर काम पूरा नहीं हुआ तो उससे क्रोध उत्पन्न होता है. काम, क्रोध, लोभ, और चाहिए. लोभ का मतलब क्या है, यू आर हैविंग इनफ बट स्टिल you want more. Not only that, you are having your share. When you want someone else's share, please understand you are in lobh, greed. Greed वही होता है ना, किसी और का चीज आपको चाहिए, आपको खुद का चीज तो है आपके पास, बट फिर भी पड़ोसी का चीज चाहिए या आपके फ्रेंड का चीज चाहिए, दैट इज ग्रीड, लोभ. मोह, यू आर ऑलवेज इन इल्यूजन. दिस इज अनदर वेरी बिग डिसीज. हम लोग हमेशा मोह में रहते हैं, क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है, यही हमको पता नहीं है. We go for temporary things. Now 31st is coming. Everyone wants to get enjoyment, happiness, right? Everyone wants happiness. And what type of happiness you will get? What type of happiness can you get? Yes, Ashna, what type of happiness can you get on 31st night? Or rather, any function, any thing, what type of happiness can you get? Come on, fast, fast. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Probably Krishna. nowadays it's just alcohol and drinking and having fun, Alcohol, dancing. drinking, fun, drinking. Okay, but what is that? What is that? Sense gratification. Think more. It's a very typical chapka answer. See, please try to understand. Trying to feed your senses is not happiness. People are thinking if I feed my senses, I will be happy. Senses are something which can never be fulfilled. Suppose you have a counting machine. You keep on putting notes, it keeps on counting. You know, counting machine होती है ना बैंक में,
दिन भर डालते रहो, काउंट करते करते हमेशा बताती रहती है। कभी उसका पेट भरता है, हाँ अभी बस हो गया इतने, इसके आगे मैं काउंट नहीं करूंगा। दैट इज इट्स जॉब, राइट? उस मशीन का काम क्या है? जस्ट काउंट। वैसे इंद्रियों का काम क्या है? जस्ट टू गिव यू द फील ऑफ इट। हाँ मीठा है, तीखा है, चटपटा है, जो भी है, इंद्रियां आपको इंफॉर्मेशन दे रही है। कितना भी कर लो, क्या इंद्रियां बोलेंगी बस हो गया भाई, मीठा खा लिया बस हो गया। मैक्सिमम उस दिन के लिए बोलेगा बस हो गया, अभी और खाएंगे तो वॉमिट हो जाएगा, बट नेक्स्ट डे वापस। दैट्स अ प्रॉब्लम विद द ड्रंकर्ड। ड्रंकर्ड क्या सोच रहा है कि भाई मैं पी रहा हूं, आई एम गेटिंग हैप्पीनेस, बट एक्चुअली व्हाट इज गेटिंग हैप्पीनेस? दैट सेंस, the sense organ is getting some satisfaction for some time. मजा आ रहा है, it's not satisfaction also, it is enjoying. कुछ देर के लिए आनंद आ रहा है। जैसे अगर अभी इतनी ठंडी हो गई है और अगर रूम में कोई हीटर लग जाए तो थोड़ी देर के लिए एक राहत वाला फीलिंग रहता है, अच्छा, कोजी फीलिंग लगता है। बट वही आप खिड़की सब बंद रखे हो, थोड़ी देर बाद आपको घुटन लगने लगती है, बिकॉज ऑक्सीजन लेवल इनसाइड द रूम स्टार्ट्स dropping. Then immediately something else has to be done. तो कहने का मेरा मतलब क्या है यहाँ पे? This is not happiness. Just trying to feed your senses and trying to derive happiness from that, you will never get, because senses can never be satisfied. कितना भी कर लो वो कोई भी कभी satisfied नहीं होंगे, खुश होने की तो दूर की बात। तो वो बेचारे, वो तो ऑर्गन है, काम कर रहा है मशीन की तरह, काउंटिंग मशीन की तरह। अब कभी काउंटिंग मशीन बोलेगा हाँ भाई बहुत काउंट कर लिया बस हो गया, इससे ज्यादा और पैसा नहीं चाहिए, उसको तो पता भी नहीं है किसके लिए काउंट कर रहा है वो, लेने के लिए या देने के लिए, वो तो सिर्फ काउंट कर रहा है। उसी तरह है आपका जीभा, टेस्ट बता रहा है हाँ भाई खाने लायक है या नहीं है, स्वादिष्ट है या नहीं है, बस। कैन द टंग टेल यू कितना किलो खाना खा सकते हो? कैन यू नोज टेल यू कितना सूंघ सकते हो? कैन यू ईयर्स टेल यू नहीं बस 1 घंटे के ऊपर म्यूजिक नहीं सुनना है या 20 मिनट के ऊपर म्यूजिक नहीं सुनना है? कैन द ईयर्स टेल यू दैट? क्या आपके कान कह सकते हैं क्या? कितना भी सुनाओ, सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे। इसके लिए कोई कोई चपर चपर करने वाले लोग एक बार मुंह चालू कर दिया तो चालू रहते हैं उनका दिन भर, बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़। मुंह थोड़ी बोलते नहीं इतना ही वर्ड्स बोलूंगा पर डे, चालू रहते हैं। So this is how the senses are, and that is what people think is happiness. That is moha. You are an illusion. What is actual thing and what is, you are in a confused state. And still more confusion is bigger moha क्या है? अरे बाप रे, मेरे पड़ोसी मेरे फ्रेंड तो गए पार्टी में, वो खुश होके आ जाएंगे, मैं दुखी रह जाऊंगा, मैं पीछे रह जाऊंगा। उसने बढ़िया ड्रेस खरीदा, बढ़िया बेटर लिपस्टिक खरीदा है उसने, जो भी है नो सम एवरीथिंग यू कैन, यू व्हाई यू जस्ट वांट टू फॉलो समवन एल्स। इसके लिए ऐड में क्यों दिखाते हैं एक हीरो या हीरोइन आके कहते हैं हाँ ये इस्तेमाल कीजिए, इसको इस्तेमाल कीजिए, क्यों कहते हैं? आपको लगना चाहिए हाँ अरे ये क्या है, ये इस्तेमाल करके ये खूबसूरत बन गई, मैं भी फेयर एंड लवली यूज करती हूँ, मैं भी गोरी बन जाऊंगी। You know the best part, humans are never satisfied with what they have. You go to Europe or foreign countries, they use tan creams. वहां पे भी परसेंटेज 10%, 20%, 30%, 40% creams you get, by which they are fed up of the white color, they want to tan their skin. और यहाँ चले जाओ या इंडिया में आओ, फेयर एंड लवली। मैं छोटा बच्चा था तभी से देख रहा हूँ ये फेयर एंड लवली बिक रहा है, आज तक कितने गोरे हुए भगवान जाने। उम्मीद पे दुनिया कायम है, इसी पे ये एड, द प्रोडक्ट रन्स ऑन ओनली वन थिंग, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हर कोई लगाता है, लगेगा उसको लग रहा है कभी ना कभी तो मैं गोरा हो जाऊंगा। प्लीज, दिस इज ऑल मोह।
The very fact if you have the desire that you are going to become happy is biggest moha. So काम, क्रोध, लोभ, moha, mad. What is that mad? मेरे पास क्या है? तो काफी बड़ा डायलॉग है ना दीवार पिक्चर का। आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? स्टाइल में बोलता मेरे पास माँ है। So that is mad. मेरे पास, and every time we when you feel insecure, we count on our belongings. हमारे पास क्या है, मेरे पास क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या होना चाहिए मेरे पास, और क्या कमी है मेरे पास, वो भी मेरे थोड़ा दिन में आ जाना चाहिए वो चीज मेरे पास. That's it. So lifelong, what are you going to do? Mad of what? Some people are proud about their beauty. How long, how many years can you be beautiful? If someone is Miss World, Miss Universe this year, coming, wait. If someone is Miss World or Miss Universe, कितना दिन टिकेगा वो? Next year there is going to be another Miss World or a Miss Universe. And what are you proud about? You may say that amongst some people, इस मृत्यु लोक में कुछ लोग जो मरने वाले हैं उनमें से मैं खूबसूरत दिख रही हूँ. Just imagine, कत्ल खाना है, butcher shop, और उसके बाद 5 बकरियां बांधी हुई है, 5 goats are tied, sheep or goat, whatever it is, and out of that 1 goat is really looking beautiful and charming compared to the other goats. What will that goat feel? I'm beautiful. You are just waiting for your butchering. You may feel, yes, I'm आप चारों से तो मैं बहुत खूबसूरत हूँ. Might be, you may be खूबसूरत, but the end destination is चारों को काटा जाने वाला है, चारों को 10 मिनट में काट के ऊपर लटकाने वाले हैं, और उसकी बोटी बोटी बना के खाएंगे, मतलब बेचेंगे, जो भी करेंगे. Similarly, the time, the biggest factor called time is killing each one of us. We are not understanding that, but we are in mother. हमारे पास what I possess, what you possess, you cannot even take your body along with you at the time of death. Your identification that you are a soul, आप एक आत्मा हो, शरीर नहीं हो, ये अगर समझ जाते हो, कितना आराम मिल जाए. तो आपको जितने भी जिंदगी जीवन में जितनी चीजों की कमी है, या विच यू डोंट हैव, या आपने अभी तक नहीं कर पाए जीवन में, उसका गम नहीं रहेगा आपको. यू विल नेवर हैव दैट सैडनेस. क्यों? आई नो आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द सोल. ठीक है, मैंने अपने लिए लंबोर्गिनी गाड़ी नहीं खरीदी, फाइन, ऐसा भी मैं मरने के बाद मुझे लंबोर्गिनी गाड़ी में डाल के लेके नहीं जाएंगे. आई डोंट नो कलयुग में आगे क्या होगा, बट अभी तक तो there is no VIP स्मशान भूमि. The rich and poor all go to the one crematorium only. There is no high class crematorium, high class fire and high class perfumes put on your body. Everything is the same. Nobody wants, even a rich man dies, the family members don't say एक अमीर आदमी है मर गया, अरे कुछ दिन के लिए उसका शरीर को रहने दो. सब घर वाले बोलते हैं लेके जाओ, मर गया, आप काम काम. So please understand, ये चीज आप लोगों को समझना चाहिए कि भाई we are all having mother. We are very proud of our possessions, whatever we possess. Somebody may be very proud about their youthhood. कितने दिन का है youthhood? पता भी नहीं चलता कब youthhood चला गया. One doesn't realize when the youthhood just passes away like this. Your wealth,
what can you do with your wealth? What could Cyrus Mistry do with his 3,000 crores rupees when he was lying like a vegetable? His body was lying like a vegetable on the road after the accident. Could the costliest vehicle save him from death? Nothing could change. That is more. If that was the case, the rich would have never died. The rich would have never suffered. But you see, 4 problems which you always say: birth, death, old age, and disease. This is common to all. Nobody wants it, but everybody gets it. कोई मरना चाहता है, अमीर मरना चाहता है, गरीब मरना चाहता है, कोई नहीं मरना चाहता. एक चींटी तक मरनी नहीं चाहती है. But everyone has to die. Old age, कोई बुढ़ा नहीं, कोई बुढ़ा होना चाहता है, कोई नहीं होना चाहता. Everyone wants to stay young and fit. But whether rich or poor, he has to become old. Whether rich or poor, he gets a disease. Whether rich or poor, he has to die. But the problem is, even a beggar is proud about his penny. Prabhupada clearly says, pride kisko nahi hai? That beggar will say, see, I am a beggar from a posh area. You are a beggar from a small area. I am a beggar from posh area. What are you? I'm still a beggar, right? What does it make? Okay, you may make 500 rupees a day. He may make 100 rupees a day. That's it. Okay, he's proud about that comparison. बस उस कंपैरिजन को हिंदी में क्या बोलते हैं? तुलना. हाँ, उस तुलना में ही वो खुश है. उसके आगे वो कहीं जाना नहीं चाहता है वो. So please understand that काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद and matsarya, enviousness, they're only, they all go hand in hand. काम and क्रोध, they go hand in hand. Lobh and moh, they go hand in hand. And काम, क्रोध, लोभ, मद and matsarya, they go hand in hand. साथ में चलते हैं. मद जिसका है उसका मद है, और जिसका नहीं है और किसी और के पास है उसको देख के जलते हो, उसको तुम आश्चर्य कहते हैं. So what's so different? सब साथ, सब the two sides of the coin कहते हैं ना, सिक्के के दो पहलू होते हैं, दो सिक्के के दो साइड होते हैं, बस वही है तो है. काम एंड क्रोध, काम पूरा हो गया तो और काम नहीं हुआ तो लोभ, क्रोध आएगा. लोभ और मोह, लोभ होना भी गलत है और ये उसका वजह क्या है? मोह के वजह से. लोभ बढ़ेगा तो मोह बढ़ेगा. एंड सिमिलरली मद एंड मात्सर्य, यू आर प्राउड अबाउट व्हाट यू आर हैविंग. जो है आपके पास उसके बारे में आपको एक प्राउडनेस है, एक प्राइडनेस है, और जो नहीं है उसके बारे में आपको ईर्ष्या है, जेलसी है. क्यों? वो किसी और के पास है, आपके पास नहीं, किसी और के पास. इट मे नॉट नेसेसरी ओनली बी मनी. हमेशा पैसे का ही ईर्ष्या नहीं होना है, कहीं गाड़ी का नहीं. शी इज लुकिंग मोर ब्यूटीफुल देन मी. वो मुझसे खूबसूरत है. अरे वो मुझसे जवान है, मैं बूढ़ा हूं, वो जवान है. ये भी तो जेलसी है. सो जेलसी हैज नो एंड्स. एंड द प्रॉब्लम इज, we try to solve everything as per our own mind and thinking. अपने हिसाब से सोचते हैं कि हमारा फायदा है. अगर कोई अच्छा सत्संग में जाओगे, अच्छा कोई राह भी दिखा देगा ना, उसमें भी आप अपना तर्क लगाओगे. दैट इज द प्रॉब्लम. एक बार एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया. डॉक्टर साहब पेट खराब है. तो डॉक्टर साहब ने बोला, अच्छा थोड़ा हल्का भोजन किया करो और कुछ परहेज करो, कुछ दवाइयाँ खा लो, ठीक हो जाओगे. अभी घर वापस जा रहा था. हल्का भोजन किसे कहते हैं? द प्रॉब्लम इज ही इज अप्लाइंग हिज ओन इंटेलिजेंस. हो, जमीन से हल्का क्या है? पानी. तो जमीन भारी चीज है, पानी हल्का है. अच्छा, पानी के ऊपर क्या तैरता है? तेल. तो पानी से हल्का चीज क्या हुआ? तेल. तो तेल में तला हुआ सब्जी खा रहा है. डॉक्टर साहब ने बोला हल्का खा, तो मैं हल्का खा रहा हूं. दिस इज हाउ एवरीवन वांट्स टू इंटरप्रेट.
to justify his sense gratification. डॉक्टर साहब ने हल्का भोजन करने को बोला है, मीन्स व्हाट, एंड वो कर क्या रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको कहीं ना कहीं अपनी इंद्रिय तृप्ति करना है। और यही हाल है ना हमारा देश का भी। क्रिसमस हो, न्यू ईयर हो या दिवाली हो, करना तो एक ही चीज है ना लोगों को, दो ही चीज ही आता है, अमेज़न से मंगाना और खूब खाना और पीना। इसके अलावा वी डोंट नो एनी थर्ड। थर्ड मैक्सिमम ज्यादा ज्यादा कहीं घूमने चला बस, और घूमने घूमने गए तो भी वही करना है, खाना और पीना। कहीं घूमने गए तो भी वहीं पे खाना और पीना, बस ये, बस that's what we have all done in all our births। जन्मों से हम लोग वही करते आ रहे हैं। क्या करते आ रहे हैं? बस अपने इंद्रियों को खिलाते आ रहे हैं। And this is what it is, right? That's what a sense gratification all about. So काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, how are you going to clean this? वो एक ही सर्फ है, एक ही डिटर्जेंट है, एक ही साबुन है, और वो साबुन कौन सा है? भगवान का नाम का। बड़े से बड़े डाकू was वाल्मीकि इन इस प्रीवियस इन दिस, पहले वाल्मीकि बनने के पहले वो क्या, कौन था व्यक्ति? डाकू था, डाकू रत्नाकर। बट और इतना बड़ा खतरनाक डाकू था, इतना खून करता था कि उसके मुंह में भगवान का नाम तक नहीं आता था। नारद मुनि आए, मतलब क्या मिला कि जीवन में गुरु आए, और गुरु ने कृपा की। गुरु ने बोला, देख भाई, तू जो तू कर रहा है ये जीवन में जो तू कर रहा है, दैट इज समथिंग यू आर डूइंग वेरी रॉन्ग, यू आर हेडिंग फॉर अ डिजास्ट्रस एंड, यू विल गो टू हेल। इमीडिएटली व्हाट डिड ही से? नहीं नहीं, आई एम डूइंग इट फॉर माय फैमिली। तो घर जाके पूछो घर वालों को, क्या तुम्हारे सर नरक जाएंगे क्या? जब घर वालों ने जब घर वालों को पूछा, तब घर वाले क्या बोले? नहीं नहीं, दैट्स योर जॉब, यू हैव टू फीड अस, आपका काम है हमको खिलाना। आप कैसे खिला रहे हो उसके वजह से आप नरक में जा रहे हो, दैट इज योर हेडेक। वापस आया गुरुजी के पास, अरे वो लोग तो ना बोल रहे हैं। बोला, अभी जाओ, अकेले जाओ नरक में जाके तलो। तब बोला, नहीं, अब कोई राह बताओ। तब भगवत मार्ग बताया भगवान नारद मुनि ने। एंड देन व्हाट डिड ही टेल हिम? First, you cleanse yourself. Before you write the Ramayana, before you to become a spiritually enlightened person, पहले क्या करो आप? भगवान का नाम जपो। तो राम नाम लेने को बोला था, राम नाम तो ले नहीं पाया बेचारा, इतने पापी था। मरा मरा मरा, चल भाई, गुरु ने बोला मरा ही बोल। मरा 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 मरा, तो मरा मरा से स्टार्ट हुआ और राम राम में खत्म हुआ। So this is how one gets cleansed of his misgivings. जितने भी ये, these are all called as misgivings. काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य is called as misgivings. और ये क्या करता है? व्यक्ति को अपने राह से भटका देता है। That is the problem. प्रभु जी क्या हुआ? अगर मन में है थोड़ा काम, थोड़ा क्रोध, थोड़ा लोभ, थोड़ा मोह, थोड़ा मद, थोड़ा मात्सर्य, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आपको क्या करेगा? राह से भटका देगा। कितने लोग रात को बैठ के भागवतम या रामायण या महाभारत पढ़ने को तैयार हैं, मगर रात को पार्टी करने को बोलो, भूत की तरह पूरा रात जागेंगे। आजकल भूतों को भी शर्म आने लगा, उनका भी कोई टाइमिंग नहीं रहा बेचारा। वो लोग भी पहले तो रात को 1-2 बजे आके डराते थे, बोलते 2 बजे 3 बजे तो इंसान ही घूम रहा है भूत की तरह, तो क्या करें? जी प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ये मिसगिविंग्स अगर साफ करना है तो सिर्फ और सिर्फ भगवत नाम से, सुनने मात्र से काफी नहीं है, इसको जीवन में उतारना जरूरी है। मन में से, हाँ प्रभु जी, योर लेक्चर वाज वेरी नाइस, I have understood by the holy name only, by chanting the holy name only, I can cleanse of my all my misgivings. But कितने लोग हाथ में माला लेके जप रहे हो, या सिर्फ लेक्चर सुन के? नेक्स्ट थर्सडे वी मीट, टिल देन हरे कृष्णा। सब लोग हरे कृष्णा बोल के जाएंगे, नेक्स्ट थर्सडे आ जाएंगे प्रभु जी, टाइम पे आ जाएंगे। What is the use if we don't chant, to take the holy name?
याद रखना, भगवान का नाम लेने न लेने मात्र से ये काम क्रोध लोभ तो मोह तो जाएंगे नहीं, ऊपर से ये जो ज्ञान है ना, इसको आने से रोकेगा. दैट इज द बिगर प्रॉब्लम. इट विल स्टॉप योर स्पिरिचुअल नॉलेज एंटरिंग योर हार्ट. तर्क देगा, मन इतना गंदा मैला है, जन्मों जन्मों से यही कार्य किया है, क्या तर्क देगा. प्रभु जी बोलते हैं पर सब कुछ प्रैक्टिकल नहीं है. प्रभु जी का लेक्चर बढ़िया है, बात सही बोल रहे हैं, पर क्या है ना, प्रभु जी को प्रैक्टिकल जीवन का पता नहीं ना. वो खुद बाल मुंडा के बैठे हैं, इसका मतलब थोड़ी है कि हम लोग भी ऐसे करेंगे. नहीं, इज इन अ डिफरेंट जोन, वी आर इन अ डिफरेंट जोन. सुनना चाहिए. आजकल का डायलॉग है ना, सुनो सबकी करो मन की. दैट्स अ प्रॉब्लम. When you listen from the spiritual master's mouth, please implement it. जीवन में उसको उतारना है. Information is meant for transformation, or else it is just a weight on the head. मैं कुछ कहूंगा आपको, शराब नॉनवेज नहीं खाना चाहिए. अभी आप जीवन में नहीं उतारोगे और कथा भी आओगे, क्या फायदा. ना शांति से नॉनवेज खा पाओगे, ना शांति से कथा सुन पाओगे. कथा के वक्त वो याद आएगा और नॉनवेज खाते वक्त मेरा चेहरा सामने आ जाएगा, पॉपअप हो जाएगा. अरे टंगड़ी में भी प्रभु जी दिख रहे हैं, अरे क्या करें, है ना. सो ना ये ढंग से होगा ना वो ढंग से होगा. सो टेक वन पाथ, टेक समथिंग विच इज सेंसिबल, विच इज ट्रू. व्हेन यू कम टू नो, आपको पता चल गया कि आप शरीर ने एक आत्मा हो, तो आत्मा के लिए क्या जरूरी है वो कार्य करो. शरीर के लिए जो कार्य जरूरी था इतने साल तो कर चुके हैं, क्या भला हुआ. हाँ, मैं प्रभु जी कुछ डिफरेंट करता हूँ. मेरे माता पिताजी है ना, फॉरेन नहीं गए, फॉरेन घूम के नहीं आए, वहां जाके शराब नहीं पी, वहां जाके नॉनवेज नहीं खाया, वहां जाके व्यभिचार नहीं किया, वहां जाके कसिनो में खेला नहीं. मैं कर रहा हूँ वो कुछ. डोंट थिंक यू आर समथिंग यूनिक और ग्रेट. इन द एंड जो सबका हुआ वो आपका भी होगा. आपके परदादा भी अमर नहीं थे, आपके परपोते भी अमर नहीं होने वाले हैं. Everyone is going to have a finite end. And before you go for the finite end, if you change your route, but route change करना हमेशा मुश्किल रहता है, हमेशा मुश्किल. क्यों? घर वाले कभी चेंज करने देंगे नहीं. घर वाले कभी अपने थे या पराए हैं पता नहीं चलता है. कई घर में ऐसा होता है, घर वाले अगर कोई व्यक्ति भक्ति मार्ग में जाना चाहता है, उसके माँ बाप आएंगे रास्ते पे, उसके मार्ग में आएंगे और क्या बोलेंगे, नहीं बेटा ये तो अभी तू जवान है, अभी तो जीवन के मजे लेने के चाहिए, ये सब मत अभी नहीं करोगे तो कब करोगे. कुछ जवान लड़के आ गए थे मेरे क्लास में, उनकी मम्मियों को डर आ गया, कहीं मेरा बेटा कहीं साधु ना हो जाए. अरे प्लीज अंडरस्टैंड, भगवत गीता सुनकर अर्जुन युद्ध लड़ा, ना कि बैठ के शराब पिया. प्लीज अंडरस्टैंड, भगवत गीता सुनने से व्यक्ति और प्रोडक्टिव और पोटेंशियल हो जाता है, ना कि नकामा होता है. निकम्मा हो जाएगा भाई, तू क्लास वास जाएगा, भगवत गीता क्लास में जाएगा, निकम्मा हो जाएगा, ना शराब पिएगा, ना दोस्तों के साथ जाएगा. बनाइए ना दोस्त, को मना कर रहा है आपको, मना है दोस्त मना के लिए. बट मेक फ्रेंड्स which are of the same mentality, with the same thinking. That is why it is said, भाई नो चर्सियों का एक समूह होता है, मालूम है, बेस्ट सर्कल होता है. चर्सी हुए, गंजेड़ी हुए ना, इनका सबका समूह जो है ना, सॉलिड गठबंधन रहता है उनके अंदर. भाई उनके अंदर गठबंधन है, आप लोग भी तो गठबंधन कर सकते हो. Even you all can form a nice group and do divine spiritual service. At least stay away from those company. So first and foremost, Sauchyam means not just cleanliness of the body, but it refers to cleanliness of the heart and mind also. But there is another understanding of Sauchyam.
शौचम का एक और अर्थ है व्यक्ति अपने चरित्र से मैलित हो जाता है, दूषित होता है जब वो व्यभिचार करता है. Illicit sex is the most dirtiest thing in this world. It not only spoils your life, it spoils your character, it spoils your mind, your heart, everything gets spoiled. So what is the understanding you get in this? ना शौच्यम, वो लोग व्यभिचार करते हैं. So demons do all these activity. कुछ लोग आजकल का जमाना ऐसा चल रहा है, भाई हो तो रावण जैसा, सुर्पनखा के लिए सीता को उठा के लेके आया. आजकल का ट्रेंडिंग ऐसा ना, यूनिवर्सिटी ऑफ व्हाट्सएप ऐसा ही बात करता ना आजकल. आजकल में आई डोंट अंडरस्टैंड, पीपल ग्लोरीफाई द मोस्ट अबोनेबल पर्सन्स द मैक्सिमम. रावण हुआ, कर्ण हुआ, एकलव्य हुआ, जहां शास्त्र में उनको खंडन किया गया है, they have been derived as the most useless people in the world, उनको ग्लोरीफाई किया गया है by यूनिवर्सिटी ऑफ व्हाट्सएप. कुछ बुद्धिजीवी हैं जो अपने आप को शास्त्र के ऊपर समझते हैं, कुछ गधे हैं जो लिखते हैं, वेद व्यास ने जो लिखा वो कम पढ़ा उनको. दे आर राइटिंग बुक्स, देयर ओन रामायण, and they become Bhatnaik. Fools. What's the need for you to write all those nonsense things when you are not read or understood it fully? Understand Shastra fully and then you mention what you want to say. No problem. Shastra clearly mentions Ravan was a very great Sanskrit scholar, no doubt about it. But kya acharan? What was the acharan? The acharan was every day for morning he used to have one buffalo for breakfast. एक भैंसा खाता था ब्रेकफास्ट में. क्या फायदा? इतना वेद पाठ करके सुबह सुबह जल्दी उठता था, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता था. कई लोग आपको दिखेंगे बाहर से एक्सटर्नली अच्छे धुले हुए, अच्छे स्टाइलिश, everything will be nice externally, but internally everything will be rotten. So please understand, इसके लिए बोलते हैं ना आचरो, आचरण उनका सही नहीं रहता है. Their behavior, their quality, you know एक अच्छा कहा, एग्जाम्पल दिया जाता है. एक बार एक साधु नदी के किनारे खड़ा था, तो देखा अचानक नदी का पानी बढ़ गया और एक बिच्छू डूब रहा था. तो उसने अपना हाथ दिया बिच्छू को उठाने के लिए. जैसे बिच्छू ने हाथ पकड़ा, डंक मारा, डंक मार के वापस सड़क के गिर गया. वापस साधु ने उठाया, वापस डंक मारा, वापस साधु ने उठाया, वापस डंक मारा. तो एक व्यक्ति ने, बगल में एक व्यक्ति खड़ा था, बोला महाराज आप जब भी इस बिच्छू को उठा रहे हो ये डंक मार रहा है, कम से कम 40 बार तो डंक मार चुका है, फिर भी आप इसको बचाने की क्यों कोशिश कर रहे हो? मरने दो ना उसको. तब कहता है ये उसका स्वभाव है, ये साधु का स्वभाव है. बचाने का कोशिश ये करे, मैं करूंगा ही, और वो उसका स्वभाव है, डंक मारना उसका स्वभाव है. So it is said that these people are most envious people. They are always, they don't know what is, in what way you have to behave. Behavior is not seen in these people who are demonic in nature. जो आसुरी वृत्ति के लोग हैं, उनके अंदर कैसे, किस तरह से बिहेव करना चाहिए, कैसे आचरण करना चाहिए, ये उनको पता नहीं है. सो न शौच्यम न अपि न च आचरो, आचरण क्या करना चाहिए पता नहीं है. That is why people, the most dirtiest acharan which I see many times, people come to the temple in obnoxious dresses. I see some men coming in shorts.
ऑफिस में जाओगे शॉर्ट्स पहन के? ऑफिस में तो नहीं जाओगे। किसी की शादी में जाओगे, अपनी शादी में खड़े रहोगे शॉर्ट्स पहन के? अरे किस व्यक्ति को मिलने जा रहे हो? अगर कोई बाहर बड़े व्यक्ति को मिलने जाओगे तो कैसे कपड़े पहन के जाओगे आप? Definitely you will wear some decent dresses, right? Some new dress or something. If you're going for to meet, let's say, the local MLA or some big hero or heroine, अच्छे कपड़े पहन के जाओगे, right? You won't go in your shorts and stand in front of the hero or the heroine. अरे when you're going to meet the supreme personality of Godhead, जब भगवान को मिलने जा रहे हो, भगवान को देखने जा रहे हो, तब shorts. नहीं, प्रभु जी, I am not God fearing, I am God loving. गॉड फियरिंग और गॉड लविंग का अंतर पता है आप लोगों को? ऐसे लोग ही आसुरी वृत्ति वाले लोग, they don't know what is to be done, what is not to be done. अरे आचरण तो रखो, कम से कम नहाओ तो सही, मंदिर आ रहे हो भगवान से मिलने और उनके सामने घमंड दिखाओ। क्या घमंड दिखाओगे? क्या आपके पास भगवान से ज्यादा पैसा है? क्या आपसे भगवान के आप भगवान से आपके पास ज्यादा रूप है, ज्ञान ज्यादा है, बल ज्यादा है? क्या ज्यादा है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गॉड? भगवान का डेफिनेशन क्या है? Yes, Ashna, tell me what is the definition of God? Sachitanand, एक मिनट। Ashna, tell me what is the definition of God? भगवान का, who is full of six opulences, हाँ, what are the six opulences? all attractive, all Hmm. wealth, all famous, all Hmm. renunciation, all beauty. Hmm. Famous, knowledge. Did I say knowledge? Hmm. Maybe I'm forgetting a point, but I can't recollect which one. Okay, please remember, भगवान का षड ऐश्वर्य क्या क्या है? हाँ, सीमा माता जी आप बोलिए। Sachidanand. हाँ, सच्चिदानंद। भगवान के अंदर 6 ऑपुलेंसेस, क्या बोलते हैं ऑपुलेंस को हिंदी में, क्या बोलते हैं? ऐश्वर्य प्रभु जी, 6 ऐश्वर्य। ऐश्वर्य, हाँ 6 ऐश्वर्य जो पूर्णता में है। क्या क्या है? नोट इट डाउन, जो नए फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं लिख लो। बलवान, धनवान, रूपवान, ज्ञानवान, ऐश्वर्यवान और वैराग्यवान। और हम ये 6 चीजों के ऊपर ही हम लोग घमंड करते हैं। कोई बहुत बड़ा पहलवान होगा, कुश्ती उस्ती करने वाला, इंटरनेशनल रेसलर, ठीक है भाई, तो 2-4 लोगों को पछाड़ दिया होगा, बट डोंट थिंक यू आर द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन दिस वर्ल्ड। बल आपके पास है, सबके पास थोड़ा थोड़ा बल है, बट दुनिया का सारा बल किसके पास है? सिर्फ उस भगवान के पास है। बलवान, धनवान, सबके पास थोड़ा थोड़ा धन है, बट सारा धन किसके पास है? उसी के पास है। तो धनवान भगवान है, उसके सामने किस चीज का घमंड करोगे आप? बलवान, धनवान, रूपवान, सबके पास थोड़ा थोड़ा खूबसूरती है, थोड़ा थोड़ा रूप है। क्या मगर भगवान से सब ज्यादा खूबसूरत कोई हो ही नहीं सकता है? सो ही इज रूपवान, बलवान, धनवान, रूपवान, ज्ञान। सबके पास थोड़ा थोड़ा नॉलेज है, कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई साइंटिस्ट होगा, सब कुछ होगा, बट सबसे ज्यादा ज्ञान किसके पास है? उस भगवान के पास। एंड लास्ट, सेकंड लास्ट क्या है? ऐश्वर्यवान। ऐश्वर्य भी होगा ना आपके पास, कुछ कुछ ऐश्वर्य होगा। मेरे पास 4 बंगले हैं, 6 गाड़ियां हैं, 10 फैक्ट्रियां हैं, ऑपुलेंस। सुबह बड़ी गाड़ी में आता हूँ, दोपहर को उससे बड़ी गाड़ी, और शाम को तो सबसे बड़ी गाड़ी में घूमता हूँ। ऑपुलेंस, फाइन। घर में 10 नौकरा है, नौकरानियां हैं, नौकरानियां हैं, और हर मेरे हर बंगलों में 20-20 नौकरानियां हैं। दैट्स योर ऑपुलेंस, फाइन। ऐश्वर्य है आपका। एंड व्हाट इज द यूज? आपके पास जो है सबसे ज्यादा ऐश्वर्य तो भगवान के पास। और कुछ लोगों को ये भी घमंड होगा, प्रभु जी मुझे कोई भी मटेरियल चीज से कोई लगाव नहीं, आई एम डिटैच्ड, वो आई एम वेरी डिटैच्ड।
वैराग्य है मेरे अंदर बहुत। कभी कभार खाता हूँ, कभी नहीं खाता हूँ, हफ्ते में 2 दिन नहीं खाता हूँ। आई एम वेरी डिटैच्ड। कपड़े भी मैं बस वही पुराने 4 कपड़े पहन के घूमता हूँ। अरे भाई याद रखना, भगवान से बड़ा कोई वैराग्यवान हो ही नहीं सकता है। When Sita Maya and when Ramchandra ji was asked to go to the forest, how did he go? Did he go cribblingly? Just imagine, आज का जमाना हो, बेटा और बहू को बोला गया है, या सिर्फ बेटा को बोला गया है, जाओ वन में जाओ, घर के बाहर निकल जाओ। सीता मैया बोली मैं आपके साथ चलूंगी। और आजकल की बहू होती तो रुको अभी वकील को फोन करती हूँ, कौन आपको निकालता है बाहर, देखती हूँ। लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी? बट व्हाट डिड रामचंद्र जी डू? आई एम गोइंग, माय फादर हैज सेड आई हैव टू गो, and he just left everything, and he just took on just sadhu's dress and he went out. and उसके पीछे पीछे सीता मैया, और निकलने के पहले क्या किया उन्होंने? जितना भी उनके पास धन संपत्ति था सब बांट दिया उन्होंने। और आप में से कोई होता तो हाँ ठीक है प्रभु जी 10 साल 14 साल ना वापस आके मुझे वापरूंगा, मैं यूज करूंगा ना, रखता हूँ ये सब सेफली, लॉक एंड की में रख के जाता हूँ, आके यूज करूंगा। So the attitude is different. We don't know what is vairagya. We have some degree of renunciation. I will accept, we may accept some degree of renunciation. थोड़ा बहुत वैराग्य हम accept भी कर लें, but full renunciation no one can do as God can do. जितना भगवान के अंदर वैराग्य है किसी के अंदर नहीं। तो ये 6 गुण भगवान के अंदर है, तो ये 6 गुण आप में अंदर थोड़ा थोड़ा हो सकते हैं। थोड़ा बल होगा, थोड़ा धन होगा, थोड़ा ज्ञान होगा, थोड़ा रूप होगा, थोड़ा ऐश्वर्य होगा, थोड़ा वैराग्य भी होगा, बट संपूर्णता सिर्फ भगवान के पास है। क्या उसके पास आपका घमंड दिखाओगे? क्या उसके सामने अपनी आपकी बड़प्पन दिखाओगे? सो प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वन शुड हैव प्रॉपर आचरण। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, न सत्यम तेषु विद्यते, न उनके अंदर सत्य होता है। व्हाट डज सत्य मीन्स? ट्रूथफुलनेस। सो कैन एनीवन टेल मी, भगवान के अंदर सत्य मतलब व्यक्ति के अंदर सत्य नहीं है तो क्या, व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग? जब भगवान महाभारत युद्ध लड़ रहे थे, कृष्ण भगवान ने कितना झूठ बोला? छोड़ो, बचपन से माखन चोरी करके खाते थे और क्या बोलते थे? मैंने माखन नहीं चुराया, मैंने चुरा के नहीं खाया। झूठ बोल रहे थे कि नहीं भगवान? अरे हाँ बोलो ना, बोलो कुछ तो बोलो। हाँ जी। भगवान झूठ बोल रहे थे ना? नहीं। भगवान झूठ नहीं बोल रहे थे। नहीं नहीं तो माखन चोरी करके नहीं खाया क्या? खाया कि नहीं खाया चोरी करके? कितने घर में जाके गोपियों का मटका तोड़ के माखन चुरा के खाया, और जब भी पूछा वो बोले मैंने माखन नहीं चुराया। याद रखना, भगवान ने कभी झूठ नहीं बोला। क्यों? एक बहुत अच्छा फेमस क्लासिकल सॉन्ग है जिसमें अगर कोई आके उसको कहे ना चोर, तो चोर है, तो भगवान बोलते मैं चोर थोड़ी हूं, चोर तो तुम हो। मेरे सृष्टि में मेरे बनाए हुए गैया के दूध में से माखन निकाल के दही बना के उसका माखन निकाल के आप खाते हो। हाँ, इसका जिसका एक्चुअल भोक्ता मैं हूं, तुम खा रहे हो। जीवन में हर कोई चीज, दिस वर्ल्ड, whatever is there in this world belongs to whom? Belongs to God. तो चोर कौन है? हम हैं, वो नहीं है। यहां तक भगवान बोले तू चोर, तेरा बाप चोर, तेरा बाप का बाप चोर, तेरा माँ चोर, तेरा माँ का बहन चोर, सब चोर। और सही बोले ना, कहां गलत बोले? यू आर यूजिंग माई थिंग्स। भगवान कह रहे हैं मेरी चीजें, मेरी सामग्री, मट्टी किसकी है?
जिस जिस मटके में आपने दही मथा, दही को बिलो के आपने मक्खन निकाला, वो मट्टी किसकी है? मेरी है। उस मट्टी में से जो बर्तन बना के आप उसमें से मक्खन निकाल रहे हो, अगर उसको मैंने खाया तो मैं कहां से चोर हुआ? चोर तो आप हो। मेरा मट्टी लेके आप बर्तन बना के उसमें से मक्खन बना के खा रहे हो। जो लकड़े को रख के आप मथ रहे हो, द वुडन शाफ्ट व्हिच वाज यूज्ड, वो लकड़ा कौन बनाता है? आपने बनाया लकड़ा? हु मेड? भगवान ने बनाया। तो भगवान बोलते हैं मैं नहीं, तुम चोर हो, तुम्हारा बाप चोर है, तुम्हारा पूरा खानदान चोर है। और कभी भगवान ने झूठ नहीं बोला। और रही बात, अगर आप कहते हो कि महाभारत युद्ध में भगवान ने थोड़ा बहुत तो झूठ बोला है, भगवान क्या कहते हैं? अधर्म को नाश करने के लिए, झूठ को गिराने के लिए अगर मैं झूठ कहता भी हूं तो वो झूठ नहीं माना जाएगा। That's why Lord says to establish dharma, righteousness, if I have to use little bit of no, it's like, to understand this, I'll always give this example. अगर आपका रोड ब्लॉक हो, ट्रैफिक जैम हो और सामने का साइड खुला हो, कायदे से तो आपको जाना नहीं चाहिए, मगर पुलिस वाला उधर से जाता है। मगर आप बोल सकते हो अरे तू तो कायदा तोड़ रहा है। वो तोड़ नहीं रहा है, वो आगे जाके जाम खोलने के लिए जा रहा है। अगर पुलिस वाला उस रास्ते से न जाए तो क्या वो जाम खुलेगा? वो ट्रैफिक जाम नहीं खुलेगा। तो इसके लिए प्लीज अंडरस्टैंड, वो अगर झूठ बोल रहे हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, और अगर कोई असुरी व्यक्ति झूठ कहता है, वो किसके लिए कहता है? अधर्म को स्थापना करने के लिए या अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। जैसे कोई शराब पी के आता है और कहता है आप लेट आए हो, शराब पी के आए? नहीं नहीं, मैं शराब नहीं पीता। मतलब बहुत सीधा आदमी। तो ये झूठ कहा जाता है। So this is how, please understand, all of you will understand that one very important factor, these are all very important factors. अगर ये चीज आप समझ पाओगे तो आपके अंदर और एक असुर के अंदर, अभी आप किस कैटेगरी में हो अब ये आपको सोचना है, देवी हो या असुर हो। और अगर असुर हो तो देवी बन सकते हो, बहुत आसान है। इतना आसान है कि पूछो मत। कलयुग में सबसे आसान काम है, सिर्फ भगवान का नाम जपना है और सत्संग हमेशा करना चाहिए। हमेशा सत्संग करो, नाम, भगवान का नाम जपो और शास्त्र का अध्ययन करो, रामायण महाभारत का पढ़ो और अपना जीवन को संवारो। ओके, यू कैन क्लोज द रिकॉर्डिंग माता जी।